نعش بھی ساتھ میں گا رہا ہوں، کلام کیونکہ کلام کی ہم تیاری کر رہے ہیں. کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر. مجھ سے بول، مجھ سے بول، اے الہی آج تو کھول، کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر. چھانٹ مجھے، تراش بھی لے، اپنے خون سے پاک کر. چھانٹ مجھے، تراش بھی لے، چھانٹ مجھے، تراش بھی لے، اپنے خون سے پاک کر، پاک کر، پاک کر، اپنے خون سے پاک کر. کلام کو نازل کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو جاری تو کر. آسمانی باپ، ہم تیرے پاس آتے ہیں، تیرے عزیز پیارے بیٹے یسوع مسیح کے لیے شکر گزار ہے. خدا یسوع، تیرا بندہ جو کچھ بھی اس وقت کلام حاضر جماعت کے سامنے، تیرے لوگوں کے سامنے خدا ان کلام کو خدا پیش کرتا ہے، لفظوں کی ترتیب دے، اور خدا یسوع مسیح کے نام سے سننے والوں پر تیری برکت و سلامتی آئے. خداوند ہم کلام کو محض سننے والے نہ بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے. حاضر جماعت جتنے بھی لوگ دور اور نزدیک سے، جن جن ملکوں سے، شہروں سے، یورپ سے، پاکستان سے، خداوند انڈیا سے، خداوند یو اے ای سے، جہاں جہاں سے بھی ہمارے ساتھ خداوند شریک ہے، سب کو برکت دے. خدا جتنی لوگوں نے پرستش کی ہے ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام سے، آمین. تھینک یو پاسٹر جی دعا میں ہماری رہنمائی کرنے کے لیے. اور اب ہم کلام کی طرف بڑھیں گے تو میں پاسٹر ڈاکٹر یوسف سے ریکویسٹ کروں گی، بہت ریکویسٹ ریسپیکٹ کے ساتھ، کہ آپ پلیز جو بھی خدا نے آپ کو آج کلام دیا ہے وہ پلیز ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر جی، تھینک یو بیٹی، اور تھینک یو سب کا جو اس وقت یہاں حاضر ہیں. چند باتیں تو میں کرتا ہی ہوں کلام سے پہلے، آج بھی چاہوں گا کہ چند باتیں میں آپ کے ساتھ کروں جو میرے متعلق موجود ہیں، جو سننے سے ہیں بیسکلی، اور بچوں کی حرکت کے بارے میں ہے، اور جوان حرکت کے بارے میں ہے، اور اب جب کہ میں بزرگی میں ہوں تو یہ تمام تینوں دور میں بتاتا چلوں. جب میں اسکول میں تھا، یا ایسا کہہ لیں کہ جب کوئی بھی اسکول میں ہوتا ہے اور خاص بچے اس میں ہوتے ہیں، کچھ بچے پاسٹر صاحبان کی عموماً بہت سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، اور انہیں وقت کی پرواہ نہیں ہوتی، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو سبجیکٹ ہے وہ پورا مکمل کیا جائے اور سمجھا جائے، اور جتنا بھی استاد بولتا ہے اسے نیکسٹ امتحان میں
हम बताने वाले बन जाएं। और चंद बच्चे ऐसे होते हैं जो जिन्हें टीचर अमूमन कहते हैं कि आप पीछे ही बैठे, क्योंकि आगे जब बैठते हैं तो वो डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। तो वो अमूमन शरारती बच्चे हैं, जिनमें मैं भी था। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं भी पीछे ही बैठा करता था। अमूमन ये इत्तेफाक होता था कि हर वक्त घड़ी पे ही ख्याल होता था, ध्यान होता था, क्योंकि क्लास में घड़ी लगी थी, उस पर ही ध्यान रहता था कि कब ये पीरियड खत्म होगा और कब जाएगा। और जैसे पीरियड खत्म होता तो दिल को तसल्ली हो जाती थी कि मास्टर साहब चले गए हैं। और अभी, और जब इम्तिहान का वक्त आता तो जाहिर है ना सुना, ना उसे गौर से समझा, ना कुछ किया, और जनाब आम लफ्जों में यही कह लें कि बड़े कम नंबर आते थे। तो ये हाल था मेरा उस जमाने में। लेकिन आज भी हम अगर यही मैं वो किरदार अदा करता रहूं तो खुदावंद मुझसे खुश नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं जवानी में भी यही किरदार अदा करता रहा था करता था या करता रहूंगा जवान बच्चों के लिए, तो खुदावंद हमसे खुश नहीं होगा या उस्ताद हमसे खुश नहीं होगा। टाइम पीरियड की बात थी। बेहतर यह है कि हमें इस कलाम पर दिल लगाना है और दिल लगाकर इसे हासिल करने की जल्द अज जल्द कोशिश करनी चाहिए कि जब इम्तहान का वक्त आए तो हम उसकी महफिल में उसके साथ जो है वो जाने के काबिल बन जाएं। तो ये था मेरा थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड जो मैं बताता हूँ। शायद मैं अभी भी उस तरीके से नहीं सुन सकता जैसे खुदावंद सुनाता है, लेकिन शुक्र है खुदावंद का कि खुदावंद ने 84 में मुझे ये समझाया कि सुन और उस पर अमल कर। और 84 के बाद 2001 में मैंने खुदावंद का कलाम जो है वो लोगों को सुनाना शुरू किया। एनी हाउ, आज हम चंद सवाल करेंगे, और ये जो सवाल होंगे ये इसी किताब मुकद्दस में, इसी गिनती की किताब और उसके 14वें बाब में हमें मिलेंगे। आज जो हम सवाल करेंगे, 14 बाब घर में स्टडी जरूर कीजिएगा, और फिर अगले हफ्ते हम देखेंगे कि वो जवाब हमें कहाँ कहाँ मिले हैं 14 बाब में। तो 14 बाब की आज स्टडी है, आप जानते हैं। तो सवाल ये है कि सबसे पहला सवाल ये है कि एक बादशाह जब अपनी रियाया को तैयार कर चुकता है, ठीक है, एक बादशाह जब अपनी रियाया को तैयार कर चुका है और उस कौम से जो शैतान की कौम है उसे शिकस्त देना चाहता है, ठीक है, और जब शिकस्त देना चाहता है तो वो अपनी कौम यानी अपनी रियाया को तैयार करता है, लेकिन उसकी अपनी रियाया डरती है, उसकी अपनी रियाया डरती है, और उस डर की वजह से वो लड़ नहीं पाते। और जब लड़ नहीं पाते तो सवाल ये है, तो वो बादशाह अपनी उस रियाया के साथ जिसे उसने तैयार किया था, तैयार कर चुका था, उसके साथ अब सलूक क्या करेगा? ये सवाल का जवाब हमें 14 में मिलेगा। तो हम अगले हफ्ते जो है देखेंगे कि वो किस किस ने देखा और किस किस ने इसमें से उसको अडॉप्ट किया, उसको चुना। ठीक है, सवाल ये है कि वो बादशाह जिसने तैयार किया और लोग तैयार ना हुए, और अब उसके साथ वो करेगा क्या? ठीक है, जबकि उस बादशाह ने, जो खुदा है, इसराइल के साथ जो कुछ किया, इस दौरान हमारा बादशाह, जैसा कि आप जानते हैं कि वो शिकस्त नहीं बल्कि आजाद करने आया है। किसके जरिए? 12 रसूलों के जरिए और हमारे जरिए। और अगर हमने उन लोगों को
जो खुदा की सलीब का पैगाम अच्छी तरह से नहीं समझ सकते, उन्हें ना बताएंगे तो यीशु हमारे साथ क्या करेगा? ये दूसरा सवाल। ठीक है, क्या करेगा और कैसे होना चाहिए? जबकि 12 कबीले थे, 12 कबीलों को तैयार किया गया और अब 12 शागिर्दों को तैयार किया गया। तो अब हमारा खुदावंद बादशाह यीशु बादशाह हमारे साथ क्या करेगा? जबकि उसने 12 रसूलों को कहा कि मुल्क कनान नहीं बल्कि सारी दुनिया में जाओ और यीशु की गवाही दो। आज हम देखते हैं एटीट्यूड। किसका एटीट्यूड? 3 बातों पर मबनी है। जमात का एटीट्यूड, रियाया का एटीट्यूड, मोजेस, यशुआ और कालिब का एटीट्यूड और खुदा बाप का एटीट्यूड। इन तीनों बातों पर मबनी जो है ये चैप्टर मौजूद है, जो कि सबसे पहले हम जमात की बातें देखेंगे, उसके बाद मूसा और यशुआ की बातें देखेंगे और फिर खुदावंद की बातें देखेंगे और फिर मूसा की वकालत देखेंगे और खुदावंद का फैसला देखेंगे और फिर खुदावंद का फैसले के बाद उसका कहर है वो देखेंगे और खबर सुनाने वाले जो खबर सुनाते हैं उनके बारे में और फिर कौम का फैसला देखेंगे कि वो क्या करती है। तो इस तरह हम सबसे पहले देखेंगे जमात की बातें जिनमें लोगों का डर है। जमात की वो बातें जिनमें लोगों का डर होता है। वो बादशाह का डर या वो यीशु का डर उस वक्त भूल जाते हैं जब लोगों का डर उसमें समा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 13 बाप में और उसकी लास्ट आयतें थी जो लिखा था कि 33वीं आयत में लिखा है और 13वां बाप, और हमने वहां बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जबारों की नस्ल से हैं, और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे भी और उन्होंने महसूस भी किया। और वो लोग कौन थे? आप जानते हैं 29 में वर्ष में लिखा है 13 बाप में, उसमें लिखा है कि उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालेकी आबाद हैं और हत्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं और समुद्र के साहिल पर यर्दन के किनारे किनारे कनान बसे हुए हैं, कनानी बसे हुए हैं। तो हमने कनानी और हत्ती, यबूसी, अमूरियों को देखा कि वो किस खानदान में से निकले थे। 10वां बाप, पैदाइश के 10वां बाप। तो इनसे डरने के लिए वो बादशाह खुदा से नहीं डरे बल्कि किन के साथ डरे। हम पढ़ते हैं और फिर इन्हीं सवालों का जवाब हम अगले हफ्ते देखेंगे कि किसने क्या पाया और किसने क्या खोया। एहतियात से पढ़िएगा और एहतियात से सुनिए और समझिएगा। 14 बाब मैं चाहूंगा कि 1 से 4 तक पढ़ दीजिए, जिनमें वो लोग हैं जो लोगों से डरते हैं। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू भाई अल्बर्ट, सो काइंड ऑफ यू, आई लव यू।
अब देखते हैं कि सारी जमात जो है वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। क्यों? आप जानते हैं, तेरा बाप ने हमने देख लिया था। ठीक है। और कुल बनी इसराइल, जितने भी बने इसराइल के लोग थे, मूसा और हारून से शिकायत करने लगे, क्योंकि मूसा ही उन्हें लेकर आया था, लीडर वही था, हम ये देखेंगे। और फिर सारी जमात जो है वो खुदावन से गिला करने लगी। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। और फिर एक उज़र पेश और एक सफाई पेश करने लगी। क्या सफाई? बीवी बच्ची हैं, माल जितना भी था वो ठीक है, और खुदा चाहता है, यानी खुदा कमजोर हुआ और वो लोग मजबूत हुए, जबकि खुदा ने ही उन्हें बचाना है और पहुंचाना भी उसी में है। तो यहाँ पे नाफरमानी वैसी ही है जैसे इब्राहिम की है। ये तो थे जिन लोगों का डर, किनके साथ? लोगों के साथ, जब्बारों का डर, उलमाओं का डर, हुकूमत का डर, बहुत से डर मौजूद हैं। अब देखते हैं कि जो खुदा से डरते हैं उनका क्या रद्द अमल है। ठीक है, जो लोग खुदा से डरते हैं वो 6 से 10 तक पढ़ दीजिएगा प्लीज। तो वो कौन है? जी। थैंक यू बहन। तो क्या हुआ कि 10वीं आयत बड़ी काबिल गौर है। तब सारी जमात बोल उठी कि इनको संसार करो। किनको संसार करो? जिन्होंने कपड़े फाड़े थे और जो सिलेंडर हुए थे खुदा के आगे। ठीक है, अब दुनियावी नजर से देखना है कि वो क्या है, जो कि 5वीं आयत में, तब मूसा और हारून ने बनी इसराइल की सारी जमात के सामने ऊंधे मुंह हो गए, यानी ऐसा ना करो। यह आजजी, हालांकि वो जबरदस्ती, जैसे कि आजकल दूसरी कौमें करती हैं, जबरदस्ती दूसरों को खुदा की तरफ लेकर जाना और उन पर जुल्म करना और उन्हें तरबियत की बातें ना बताना, बल्कि ब्लेम के जरिए उन्हें कन्विंस करना। तो ये बातें आप जानते हैं कि नून का बेटा यशुआ, जिसका नाम होसिया था और मूसा ने उसका नाम यशुआ रखा था, ये इफ्राहीम के कबीले में से था। और कालेब याफना का बेटा कालेब जो यहूदा के कबीले था। ये 4 आदमियों ने, लीडर्स ने और कहानत करने वालों ने, और कहानत को का बयान जो है वो लोगों तक पहुंचाने में हारून, ये चारों आदमियों ने उन्हें बताया। क्या बताया? कि खुदा हमें वो चीज देना चाहता है कि अगर खुदा हमसे राजी है तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। तो व्हाट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज सेइंग
to us. So is not the possible for us people who are called Christians, they should migrate the word of God to those people who doesn't believe on a second coming and doesn't believe on a second birth, जो कि हम करंथियों की किताब और उसके 15वें बाप में अगले हफ्ते पढ़ेंगे। तो ये बातें जो हैं, जो खुदावन से डरते हैं वो उनका रद्द अमल इस तरह का होना चाहिए कि जो खुदा के लोग हैं उनमें भी सलामती के साथ, बड़े आराम के साथ, बड़े हम्बल तरीके के साथ उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि वो क्या है। अब खुदावन की बातें और खुदावन का फैसला क्या होता है। जब उन्होंने उन्हें संसार करने को कहा तो खुदावन हाजिर हो गया। जब इसी तरह हमें लड़ाई झगड़े की बातें होती हैं तो खुदावंद हमें कोई ना कोई ऐसा अंसर मुहैया करता है जो खुदा की बातें और खुदा का सब्र और खुदा का इत्मीनान देता है। कौन पढ़ेगा खुदा का फैसला क्या है? आज पढ़ना ज्यादा है और फिर इसको जांचना जो है वो अगले हफ्ते हम देखेंगे। कौन पढ़ेगा? 11 और 12। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये लोग कब तक मेरी तौहीन करते रहेंगे, और बावजूद इन सब मौजों के जो मैंने इनके दरमियान किए हैं, कब तक मुझ पर ईमान नहीं लाएंगे। पाकला के पढ़े और 12वीं आयत भी है। जी बेटे। मैं उनको वबा से मारूंगा और मैं राह से खारिज करूंगा, और तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कई बड़ी और ज्यादा जोरावर हो। पाकला के पढ़े और सुने जाकर। आमीन। थैंक यू बेटे। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों कि जरूर पढ़ा करो। एक तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी और पढ़ने से थोड़ा सा इंसान के जहन में आता है कि ये लिखा क्यों गया है, किस लिए लिखा गया है, किस वक्त लिखा गया, माहौल क्या था, लोग कौन से थे, कैसे उनके एटीट्यूड क्या थे। तो ये सारी बातें पढ़ने से पता चल जाती हैं और जब एक्सप्लेन किया जाता है तो और ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं, और जब घर में स्टडी किया जाता है तो और ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं। तो इस तरह इंसान पुख्ता होता जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदा का फैसला क्या है। लिखा है कि तुझे एक ऐसी कौम बनाऊंगा जो इनसे कहीं बड़ी और ज्यादा जोर आवर हो। तो खुदा ने यहाँ पे कहा है कि जो मुझसे डरते हैं उनके लिए मैं एक ऐसी कौम बनाऊंगा और उसको ऐसा मारूंगा कि इनका डर जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा। और इसराइल जो लोग मानते हैं खुदा को, उनको भी ऐसा कौम बनाएगा कि जो उन पे जुल्म करते थे, जैसे मिस्री और आगे केनानी अगर जुल्म करेंगे तो उनके बदले में इसराइल कौम को बढ़ाएगा। और जो इसराइल कौम में से ऐसे लोग डरने वाले हैं उनको वो जान से खत्म कर देगा, क्योंकि उनका भरोसा जो है वो उन जबारों पर है। उनका फोकस जो है, उनका ध्यान जो है, उनका डर जो है वो उन पर है जो जान से फना कर देते हैं, और उस पे नहीं है जो जान और रूह की हिफाजत करता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों किस्म की बातें मौजूद हैं। और फिर आगे वकील बनकर आ जाते हैं मोसेस। 13 से 19 तक पढ़ दीजिए। जब खुदा ने कहा कि मैं इस कौम को बिल्कुल मार दूंगा जो मुझसे नहीं डरती बल्कि उन जबारों से डरती है। राइट, वकालत देखें क्या करती हैं। जी आगे चलिए 13 से 19 तक। मैं पढ़ता हूँ। जी। मूसा ने खुदावंद से कहा, अब तो मिस्री जिनके बीच से तो इन लोगों को अपने जोर बाजू से निकाल लाया, ये सुनेंगे और उसे इस मुल्क के बाशिंदों को
बचाने का उसके लिए उसने उनको बेयाबान में हलाक कर दिया। सो खुदावन की कुदरत की अजमत तेरे ही उस कौल के मुताबिक जाहिर हो कि खुदावन कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरम को हरगिज बरी नहीं करेगा, क्योंकि वो बाप दादा के गुनाह की सजा उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक देता है। सो तू अपनी हिकमत, तू अपनी रहमत की फरावानी से इस उम्मत का गुनाह जिसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक लोगों को माफ करता रहा है, अब भी माफ कर दे। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुनने जाने पर बरकत हो। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आमीन। हमने इस बाब के इस हिस्से पैराग्राफ को वकालत का नाम क्यों दिया? वकील क्या करता है? जज के सामने दोनों बातें रख देता है, अपने जो भी उसका मुजरम होते हैं उनकी तरफ से केस जब लड़ता है तो सही हालत बयान कर देता है जज के सामने। ठीक है। अब क्या किया मोसेस ने? खुदावंद को बताया कि अकेले पूरी इतनी बड़ी कौम है लेकिन अकेली है, इनका बादशाह कोई नहीं है। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अकेली कौम को, जिनका कोई बादशाह नहीं है, उन्हें मरवा दें या मार डालें? ठीक है। ये वकालत का सिलसिला शुरू होता है यहां पे। अब रहनुमा जो हमारे दरमियान में होते हैं, अगर रहनुमा हैं तो वो किस तरह किरदार अदा करेंगे? अब यस्सु के बारे में आ जाए। जब शैतान या अबलीस जो है इंसाफ के वक्त खुदा बाप के सामने हाजिर होगा और क्लेम करेगा कि ये मेरा बंदा है, उस वक्त यीशु भी वहां हाजिर होंगे और वो फरिश्ते भी होंगे। तो बताया जाएगा, जैसे लिखा है, किताबें खुलेंगी और किताबों के बाद एक बड़ी किताब खुलेगी और जिसमें उसका नाम मिलेगा। अब यही वकालत जो है वो यीशु अदा करके अपना खून सामने रखते हैं कि ऐ बाप, आपने जो खून मांगा है, जो बर्रा मांगा है, उस बर्रे का खून ये है। और इन नोटबुक की वजह से, इन किताबों की वजह से इसके नाम जो है, इनके नाम जो है वो मेरे साथ, मेरी गवाही देने में, मेरे साथ चलने में, मेरी बादशाही की मदद करने में हाजिर है। अब आप खुद ही फैसला करें कि इन्हें दोजख में डालना चाहते हैं या किधर डालना चाहते हैं। लेकिन 19वीं आयत में लिखा है, सो तू अपनी रहमत की फराउनी से इस उम्मत का गुनाह जिसे तूने मिस्र से निकाला, यहां तक इन लोगों को माफ करता रहा और अब भी मुआफ कर दे। खुदाइश की किताब 6 बाब में भी पढ़ें। आखिर बशर जो है, आखिर इंसान बशर ही है। खुदावंद ने कहा कि मैंने तेरी दरखास्त के मुताबिक माफ किया, लेकिन मुझे अपनी हयात की कसम और खुदावंद के जलाल की कसम जिससे सारी जमीन मामूर हो गई, चुनाचा उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने के और बावजूद इन मौजों के जो मिस्र में मैंने मिस्र में और उन बेयाबान में दिखाए थे, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। सो क्या करेगा? 18वीं आयत में, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी और गुनाह और खता को बख्श देता है, लेकिन मुजरम को हरगिज बरी नहीं करता। खता को माफ कर देता है लेकिन मुजरम को माफ नहीं करता, उसको कॉन्सिक्वेंस भुगतने पड़ेंगे।
और कॉन्सिक्वेंस भुगतने के बाद जब वो अपनी स्लीब उठाकर यीशु के पीछे चलेगा तो यीशु अपना खून उसके सामने, बाप के सामने रख देगा कि ये देखो, ये मेरे साथ चलता रहा है, इसने भुगत ली है, काफी इसने कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भुगत ली है। वहां भुगतने वाला कौन था? वहां भुगतने वाला मूसा था, हारून था, कालेब था, यीशुआ था। लेकिन वो उस जिस्म की बात करते हैं, लेकिन खुदावंद किसकी बात करते हैं? खुदावंद आसमानी बाप हमारी रूह की और जिस्म की। क्योंकि करंथियों की किताब उसके 15वें बाप उसकी 25 हम पढ़ने वाले हैं, पहला करंथियों 15 बाप, उसमें देखेंगे कि ए मौत तेरी फतह कहां गई। ठीक है, उसमें देखेंगे जो फना का जामा पहन चुके थे वो फिर बका का जामा पहनेंगे, यानी जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे आते हैं। मूसा की वकालत हमने देखी इस बात में कि वो क्या थी, यसु की वकालत से के सामने कंपेयर किया। अब खुदावंद की जजमेंट है। एक तो फैसला खुदावंद का हमने देखा कि 11 से 12 तक कि इनके साथ मैं करूंगा क्या, मेरा फैसला क्या है। लेकिन फौरन ही वकालत हुई और वकालत के बाद अब जो है वो जजमेंट आ गई है। वो क्या है? 20 से 25 तक कौन पढ़ेगा? बल्कि 22 से पढ़ दीजिए। मेरा टाइम तो 1 मिनट ऊपर हो गया जी। खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि उन सब लोगों ने जिन्होंने बावजूद मेरे जलाल के देखने और बावजूद उन मौजूदों के देखने जो मैंने मिस्र में और उस बियाबान में दिखाए, फिर भी 10 बार मुझे आजमाया और मेरी बात नहीं मानी। इसलिए वो उस मुल्क को जिसे देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की उनमें से भी कोई इसे देखने नहीं पाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने तक खुदा हमें बंद कर दे। आमीन। थैंक यू बेटे। और फिर इसके बाद लिखा है, फिर इसलिए कि मेरे बंदा कालेब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की, और मैंने उसको उस मुल्क में जहां वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उसी की औलाद को उसी की वारिस होगी। और वादी में तो अमालेकी कनानी बसे हुए थे। सो कल तुम घूमकर उस रास्ते से जो बैरकुलजम को जाता है बियाबाद में दाखिल हो जाओ। अब कालिब वहां से होके आया है। हमने 13वें बाप में पढ़ा था कि हर एक का लीडर, जिसमें कालिब और यशुआ भी थे, हर कबीले के गए थे वहां, जहां से होके आया है वो देगा। लेकिन दूसरे लोग जो 10 कबीले हैं उनकी तमाम जनरेशन जो है वो हम 15वें बाप में देखेंगे कि वो खुदा खत्म कर देगा। तो ये है उसका फैसला। अब फैसले के बाद ठीक है खुदावन का कहर आता है, जो कि मैं ही पढ़े देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो मैं चाहता मैं खत्म कर दूं इसको या आगे जारी रखूं? कल हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे 26 से, या अभी खत्म करना चाहते हैं? क्या आपकी राय क्या है? अगर आप थक गए हैं और चाहते हैं कि ना खत्म किया जाए और ना समझा जाए, या तो मैं इसको पास्टर जी, अगर हम जिसका आधा हिस्सा रह गया है अगर नेक्स्ट वीक से रख लें, वैसे हम अपना पर्सनली तौर पर हम सारा चैप्टर पढ़ लेंगे। आमीन। बहुत अच्छी बात की है बेटे, वेरी नाइस, सो काइंड ऑफ यू। तो आप जरूर देख के आइएगा। इस तरह हम देखते हैं कि वही दौर दुनियावी तौर पर भी रिपीट हो रहा है। वही फराउनी दौर, वही मिस्री लोग, फराउनी लोग, वही फलस्तीनी लोग, केनानी लोग जो है आज नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जनरेशन चली आ रही है, हम तक आ गई है और आइंदा भी आती रहेगी जब तक कि यीशु मसीह नहीं आएंगे। और हमारी जनरेशन, क्यों मैं अपने आप को जरूर कहता हूं कि मैं सेम की शेम की SHEM शेम
उर्दू में और सॉरी इंग्लिश में और उर्दू में सेम। क्यों? हम उसके साथ चले आ रहे हैं और यीशु उसके साथ चला है। हम उसी खानदान में, दाऊद भी उसी मूसा भी उसी खानदान में से, अबर भी उसी खानदान में से, मूसा भी उस खानदान में से, दाऊद भी उस खानदान में से, सुलेमान भी खानदान उसमें से, यीशु भी उसमें से। क्योंकि हम यीशु के फॉलोअर हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम भी उसमें हैं। तो हमारी जनरेशन भी आखिर तक चलती जाएगी, जबकि मुखाशफा हमारे सामने दरमियान में है और फैसला जब जजमेंट का आएगा तो क्या होगा। तो यहाँ तक जो जजमेंट है हमने देख ली कि खुदावंद की क्या है। खुदावंद हमारे साथ हो और खुदावंद इस कलाम के वसीले से हमें ताकत बख्शे, और घर में जरूर पढ़ के आइएगा, हम दोबारा इसकी रिवीजन कर लेंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस, आमीन। Thank you very much, Pastor Ji. खुदा आपको और अकल में दलाए दे कलाम की, बातों की, आप इसी तरह खुदा के बेटे को कलाम सिखाते रहे। और हम सब यही दुआ है खुदा के बहुत डेडिकेटेड और सच्चे खुदा के शागिर्द बन सके, स्टूडेंट बन सके। शुक्र खुदा का इस सच्चे और अच्छे कलाम के लिए और पास्टर जी के लिए, उनकी खिदमत के लिए हम दुआ करेंगे अब। और इस दुआ के लिए मैं सिस्टर सोनी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज दुआ में हमारी रहनुमाई कर दें। हालेलुया। हम अपने सरों को झुकाते हैं और जिंदा पाक कलाम के लिए खुदा के शुक्रगुजारी पेश करें। खुदा बाप, बेटे, रूह कुद्दस, दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, इस वक्त के लिए, इस मौका के लिए खुदावंदा, इस खूबसूरत लम्हात के लिए खुदावंद। खुदा बाप, इस खूबसूरत महफिल के लिए और इस महफिल में जितने लोग खुदावंद मौजूद हैं जो तेरे कलाम के भूखे और प्यासे हैं, सब के लिए शुक्र गुजारी पेश करते हैं खुदावंदा। खुदा बाप, जितना इबादत का हिस्सा गुजर चुका खुदावंदा, तेरे बड़ी रहनुमाई की खुदा, इस कलाम के खास हिस्सा के लिए खुदा तेरे हजूर में शुक्र गुजारी पेश करते हैं खुदावंदा। खुदावंदा, इस वक्त तेरा कलाम जो पेश किया गया, जो खुदा बाप हमारी राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, खुदा बाप हमारी खुदा अंधेरी राहों को इस कलाम के वसीला से तूने रोशन किया खुदावंदा, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं खुदावंद। खुदा बाप, इस कलाम के गहरे भेद मुकाशवात तूने अपने बंदा के वसीला से हम पर खोले खुदावंदा, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। खुदा बाप, तेरा कलाम जो खुदावंदा आग के शोला की मानित है खुदावंदा, वो खुदा बाप इस आवाज के लिए खुदावंद जो खुदा तूने अपने बंदा के वसीला से हमसे बात की खुदावंदा, उसके लिए शुक्र अदा करते खुदा। जितनों ने तेरे कलाम के भेदों को सुना खुदा बाप, इस कलाम को समझने की भी खुदावंदा हमें हिकमत और दनाई दे खुदा बाप, ताकि इस कलाम को इसी तरह हम खुदा सीखते चले जाएं, दूसरों तक ले जाने वाले बने खुदा बाप। हम मिलकर तेरे खादम के लिए खुदा बाप, जिन्हें खुदा तूने अपनी खिदमत के लिए चुना है खुदा बाप, और खुदा बाप ये गहरे भेद और मुकाशवात अपने बंदा पर खोले, और खुदा तेरे बंदा ने इस कलाम को हम तक पहुंचाया खुदा, इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। और तेरे खादम के लिए और ज्यादा बरकत को, मुकाशवात को, गहरे मस्सा को, पाक रूह के मस्सा को मांगते हैं खुदा, तो अपने बंदा को इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल खुदावंदा, हर तरह की अपनी देखी अनदेखी कोफ्तों से भी बचा के रखना खुदावंदा, सेहत और तंदुरुस्ती अदा फरमाना खुदावंदा। खुदा बाप, तेरे खादम के पूरे घराने के लिए हम मिलकर बरकत को चाहते हैं खुदावंदा, तो खुदा पूरे घराने के साथ हो खुदावंदा, खुदावंदा हर तरह की खुदावंदा जो कि अपनी सी कोफ्ते हमसे बचा के रखना खुदावंदा, खुदावंदा के पूरे घराने के साथ होना खुदा। इस वक्त जितने बहन भाइयों ने तेरे कलाम को सुना, सबको भी बड़ी बरकत देना खुदावंदा, हम सबको छू और बरकत दे। और आज के कलाम से खुदावंदा हमने बरकत पाई है, इसके लिए शुक्र अदा करते खुदा। इसी तरह हम तुझ में भरते चले जाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते चले जाए खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। Thank you very much, Sister Sonia.